All right. So in the first recording, I have given a brief review on the magnitude and direction part and how the values are converted to INJ format vectors. And if you have an INJ format vector, तो उसको हम magnitude और direction में कैसे लेकर आते हैं. अब हम एक question try कर लेते हैं इस पे. From the INJ format, this is from October-November 21, paper 2, variant 3. Says the vector P has magnitude 39. So the magnitude is given and is in the direction minus 5i plus 12j. So the direction is defined by taking the value as I and j, and the vector has magnitude of 34 and is in the, and then there's another vector. ठीक है, पहले हम first part की बात करते हैं. Let's just talk about this vector. The vector P has magnitude 39 and is in the direction of 5 minus 5i plus 12j. देखें, आप अगर बात करें इस वेक्टर की, which is minus 5i plus 12j, just this part, minus 5i plus 12j, again, for my own reference, I will just take a plus sign and I understand minus 5i का मतलब, if this is the starting value, I will travel 5 units to the left and 12 units up. So this is minus 5i and this is 12j. ये है वेक्टर जो अभी पता चल रहा है कि इस डायरेक्शन में हमने ट्रैवल करना है with a magnitude of 39. अच्छा, यूनिट वेक्टर का अगर आप लोगों को आइडिया हो, एंड आई एम श्योर आइडिया होगा इसलिए क्योंकि यूनिट वेक्टर P1 में आ चुका है अभी, तो अगर हम यूनिट वेक्टर के हिसाब से बात करें, आई ट्राई टू रिलेट द वैल्यू इस तरीके से. आप क्या करें, सबसे पहले तो ये देखें कि व्हाट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर व्हिच दे हैव प्रोवाइडेड फॉर द डायरेक्शन. इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालना होगा तो इट्स अ वेरी सिंपल अप्रोच. आप स्क्वायर रूट कैलकुलेट करें, आंसर आ जाएगा 169, उसका स्क्वायर रूट आ जाएगा 13. So the magnitude that they are talking about in this case is 13. अब ये magnitude 13 है, and in the same direction they want a vector of magnitude 39. 39 की वो बात कर रहे हैं, 13 आपके पास आ रहा है. इसका मतलब कि the vector they are talking about is 3 times in length to the vector that is given here. The vector P has magnitude 39 as in the direction of minus 5i plus 12j. आपने उस डायरेक्शन को यूटिलाइज किया and I calculated the magnitude in that direction. उसका आंसर आ रहा है 13. मतलब मेरे पास जो वेक्टर डायरेक्शन के लिए डिफाइन हुआ है, it is defined for a magnitude of 13. और जो मैग्नीट्यूड उन्होंने मेंशन किया है in the same direction, that is 39. It's kind of like saying कि आप 3 times ये ग्रीन वाली लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, तो आप रीच कर जाएंगे minus 5i plus 12j, minus 5i plus 12j, minus 5i plus 12j. तो आप यहाँ कहीं पहुंच रहे हैं जाके. So this is 13, this is also 13, this is also 13. ये बहुत easy होता है समझना इसलिए because whenever they provide you with such questions, they will always try to relate this vector with this magnitude. वो हमेशा ऐसे relate करते हैं इसको. तो अगर मैंने यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट किया and I got the answer as 13 और ये 39 है, तो मुझे वैसे ही पता चल रहा है कि 39 is a multiple of 13. That means I just took, अगर मैं इसकी वर्किंग दिखाना चाहूंगा, अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी कहते हैं कि इसकी वर्किंग हम कैसे दिखाएं, वर्किंग आप ऐसे दिखाइए, this value is equals to 13. The vector that they were, the vector P has a magnitude of 39, डायरेक्शन है 13, आप रखिए 39 upon 13 which is equal to 3. So basically हम जो है वो बात कर रहे हैं of a vector which is 3 times this given vector. 3 times the given vector का मतलब क्या है, 3 times the given vector,
which is equal to minus 15i plus 36j. This is your answer for P. उन्होंने कहा था ना राइट बोथ P and Q in terms of I and J. ये आपका आ गया P का आंसर in terms of I and J. अच्छा, when we are solving these vectors, some students are more comfortable with solving the vector in a different manner. मतलब स्टूडेंट्स को ये भी ठीक लगता है कि वो इसको कॉलम वेक्टर बना के सॉल्व कर लेते हैं, देन दे मल्टीप्लाई द वैल्यू विद 3. ठीक है, एज फार एज सॉल्विंग द वेक्टर इज कंसर्न, दैट्स योर चॉइस. आप कॉलम वेक्टर बना के सॉल्व करें, आई और जे बना के सॉल्व करें, बस एक बात का ख्याल रखें, आंसर उस फॉर्मेट में दीजिए जिसमें क्वेश्चन गिवन है, दैट्स द फर्स्ट पार्ट. और इफ देयर इज एनी अदर फॉर्मेट दैट दे हैव रिक्वायर्ड अस टू आंसर इन. अब यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है कि इट्स आई इन जे फॉर्मेट, तो फिर आप आई एन जे में आंसर दीजिए. So if you want to solve it in the column vector format, that's your choice. But in the end, आपको आंसर आई और जे के फॉर्मेट में देना होगा. So it's minus 15i plus 36j. This is your answer. Now let's talk about the second vector, q. Now for vector q has a magnitude of 34 and it is, अच्छा मैं इसका color change कर लेता हूँ, has a magnitude of 34 and it is in the direction of 15i minus 18j. 15i minus 18j. हम थे वही काम करते हैं. 15i minus 18j. I will try to calculate the magnitude of 15i minus 8j. I'm so sorry. ये 8j होना चाहिए था, मैं इसको गलत लिख रहा हूँ. So it's 225 is equal 225 plus 64 the value. और हम इसको चेक कर लेते हैं कि ये किसी वैल्यू का स्क्वायर रूट होगा या नहीं होगा. So it's 15 and then it's a square root of this value. So square root becomes 17. मैं फिर भी एक दफा चेक कर लेता हूँ ताकि गलती ना हो. Square root of 289. Yeah. So square root of 289 that is equal to 17. अब आप कौन सा पार्ट देखेंगे यहाँ पर? अब आप ये नोटिस कीजिए, the magnitude of the vector that they gave us is the magnitude is 17 और जो वेक्टर q है उसका मैग्नीट्यूड है 34. So if I multiply 17 by 2, I'll get the answer as 34. ये पार्ट क्लियर है? If you multiply 17 with 2, you'll get the answer as 34. इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ आपके पास जो वेक्टर ऑलरेडी गिवन है which is 15i minus 8j, they want you to multiply the vector by 2. वो चाहते हैं कि आप इसको increase कर दें and to make it 30i minus 16j. This is your vector q. ये वाले क्वेश्चन हमेशा इसी मैनर में सॉल्व होते हैं. They will provide you with the magnitude of a vector which is not given. कोई एक ऐसे वेक्टर की बात करेंगे जिसका मैग्नीट्यूड गिवन होगा, वेक्टर नहीं पता होगा, और फिर वो आपको एक और वेक्टर प्रोवाइड करेंगे दैट विल बी फॉर द डायरेक्शन ऑफ दैट वेक्टर. आपने क्या करना है, उस डायरेक्शन वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालें. यहाँ पर आंसर आ गया 13 और फिर इस 13 को मैच करें उस वेक्टर उस मैग्नीट्यूड से जो उन्होंने मेंशन किया है कि भाई इसका वेक्टर बताइए. आपके पास 13 आ गया, 13 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज 39. दैट मींस आप अपने ओरिजिनल वेक्टर को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको नया वेक्टर मिल जाएगा. That's how we got the answer for P. Then I did the same process for the vector Q, which has a magnitude of 34 and it is in the direction of 15i minus 8j. फिर मैंने क्या किया, 15i minus 8j का मैंने magnitude calculate किया and I got the answer as 17. इससे मुझे ये पता चला कि this 17 is a factor of 34 by 2. So if I want a new vector which has to be a multiple of 2 of the previous vector, तो मैं अपने ओरिजिनल वेक्टर को 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, आंसर आ जाएगा.
जस्ट सिंपल, इजी होता है, समझ आ जाता है बहुत आसानी से। सो आई होप कि ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अच्छा, इससे हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज, then find the magnitude of p plus q, that's part B, and the angle this vector makes with the positive x-axis. So let's talk about p plus q first. अच्छा, मैं इसमें एक पेज इंट्रोड्यूस करता हूँ। चलिए आगे जाना पड़ेगा। Okay, find the magnitude of p plus q and the angle this vector makes with the positive x-axis. इसको सॉल्व करने के लिए मैं भी नेक्स्ट आगे जाना पड़ेगा थोड़ा। That's okay, चले। Solve नहीं, actually I've copied another question. Let's just talk about p plus q. एक ही दफा में देख लेते हैं। -15i plus 36j and 30i minus 16j. तो एक तो वो आपसे हम यहाँ वैल्यूज निकालते हैं एंड आई विल गेट द आंसर एज 15 and 36 minus 16 which is equal to 20. सो वेक्टर आ गया हमारे पास, हमें चाहिए इसका मैग्नीट्यूड, दैट इज 15 whole square plus 20 whole square. I get the answer as 225 plus 400, which is 625 square root, and you get the answer as 25 units. अब इसमें तो कोई किलोमीटर सेंटीमीटर मेंशन नहीं है, so I'll just leave the answer as 25 units. अच्छा, then the next part to this question is, it says, मैं आपको रीड करा देता हूँ, and the angle this vector makes with the positive x-axis. So the angle this vector makes with the positive x-axis. आप इस बात का मतलब समझ रहे हैं? इसका मतलब ये, they're not asking for the direction actually. They're saying if starting from a certain position from an origin, if this vector can be mapped as 15i plus 20j, for example, if this is 15 and this is 20, 15i and 20j, मतलब 15i 20j. Again, I'm just taking this value as a, ये तो मैं सिर्फ sketch बना रहा हूँ, आप इस पे मत परेशान होइएगा कि आपने 15 कितनी लेंथ पे जाना है और 20 कितनी लेंथ पे, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। They are not asking for the direction. उन्होंने स्पेसिफिकली यहाँ मेंशन किया है द एंगल दैट योर गिवन वेक्टर इज मेकिंग विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये जो एंगल बन रहा है ये बता दीजिए। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। हमेशा ये सोच के मत चलें कि अगर उन्होंने आपसे एंगल पूछा है तो वो हमेशा बेरिंग की ही बात कर रहे होंगे। इस बात को हमेशा देख लें, आर दे टॉकिंग अबाउट द बेरिंग, आर दे टॉकिंग अबाउट द डायरेक्शन, और आर दे जस्ट टॉकिंग अबाउट द एंगल। बिकॉज अगर वो एंगल की बात कर रहे होंगे तो वो बहुत क्लियरली मेंशन हुआ होगा कि दे वांट द एंगल दैट द वेक्टर मेक्स विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस ये रहा, दे आर टॉकिंग अबाउट द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। इसका मतलब वो इस एंगल की बात नहीं कर रहे, वो आपसे इस एक्यूट एंगल की बात कर रहे हैं दैट योर ट्रायंगल और योर वेक्टर इज मेकिंग विद द एक्स एक्सिस। दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट डायरेक्शन, अदरवाइज फिर वो ये एंगल मांग रहे होते विच वुड हैव बीन द बेयरिंग पार्ट। ये वो नहीं पूछ रहे। So let's finish this part. How to calculate the angle? We all know that tan theta is equals to 20 upon 15. Theta is equals to tan inverse of 20 upon 15. I think the answer should be, check the answer, of 3. Yeah, 53.13.
मैं इसको 90 से सब्ट्रैक्ट नहीं करूंगा बिकॉज उनको डायरेक्शन नहीं चाहिए, दे आर ओनली आस्किंग फॉर द एंगल थीटा। सो दिस इज बेसिक, ये बहुत सिंपल सा एक क्वेश्चन है जहाँ पे वो वैल्यूज को कन्वर्ट करवा देते हैं और दे यूज अ गिवन वेक्टर एंड दे यूज द मैग्नीट्यूड, और वो आपको एक डायरेक्शन के लिए वेक्टर प्रोवाइड कर देते हैं। ये बहुत ही एक जेनेरिक किस्म का, और मतलब ये आते रहते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। उसमें मैग्नीट्यूड प्रोवाइडेड होता है और आई और जे डायरेक्शन के लिए प्रोवाइड करते हैं, एंड देन वी यूटिलाइज दैट इंफॉर्मेशन टू इंक्रीज द साइज ऑफ द वेक्टर, और वी कैन ऑल्सो डिक्रीज द साइज ऑफ द वेक्टर ऑल्सो। वो मैं आपको सेकंड वाले उसमें एग्जांपल में भी बताता हूँ। So this was the question from October November 21, paper 2, variant 3. Now let's move to the second example. Second question, sorry. It's from October November 19, paper 2, variant 2. Acha. Question number 8, part 1. Says a particle A travels with a speed of 6.5 meters per second in the direction minus 5I minus 12J. Again, वही बात. Find the velocity VA of the vector A, of A. और उन्होंने आपको यहाँ पर डायरेक्शन के लिए प्रोवाइड किया एक वेक्टर, एंड फॉर द स्पीड दे हैव प्रोवाइडेड यू विद द मैग्नीट्यूड। आप क्या करेंगे? अगेन यूटिलाइज द वेक्टर दैट दे हैव प्रोवाइडेड एज डायरेक्शन, उसको यूटिलाइज कीजिए। यूटिलाइज करने के लिए अब मैं ये सोच रहा हूँ कि दोनों वैल्यूज नेगेटिव में है, सो आई विल जस्ट पुट माय प्लस साइन हियर, द रेफरेंस पॉइंट। आई विल ट्रैवल 5 यूनिट्स लेफ्ट and 12 units down, 5 units left, 12 units down। ठीक है, अगर आप ये डायग्राम नहीं बनाना चाहते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, एज लॉन्ग एज यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। अगर मैं ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ तो मैं डायरेक्टली डायग्राम नहीं बनाऊंगा, बिकॉज आई अंडरस्टैंड कि द फर्स्ट थिंग दैट वी शुड डू इन सच अ क्वेश्चन where they have provided you with a speed and they're saying that this speed follows in a specific direction, तो मुझे ये अंदाजा हो जाता है कि मैंने सबसे पहले इस डायरेक्शन का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है। इस वेक्टर का डायरेक्शन कह लें या आप जो भी वैल्यू कह लें, इसको वेक्टर कह लें, इस वेक्टर का सबसे पहले मैंने मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है, ताकि मुझे आइडिया हो कि ये वेक्टर कितने टाइम्स इंक्रीज्ड है या कितने टाइम्स डिक्रीज्ड है अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस स्पीड जो गिवन है। आप उसके लिए डायग्राम नहीं बनाना चाहते, मत बनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एनीवे, सो लेट्स जस्ट कैलकुलेट दिस फॉर पार्ट 1। And I get the answer as square root 169, which is equal to 13. देखिए, अब आप जरा इस पार्ट को बहुत गौर से देखिएगा। Now the direction that they provided and I calculated the magnitude in that direction, the value is 13. The value is 13 in that direction. और जो मेरे पास स्पीड गिवन है that is 6.5. Now it's not a multiple of 13 now. अब ये increased by 2 नहीं जा रहा है, ये divided by 2 जा रहा है। See 13, the one that you calculated and the speed that they have provided. ये multiply by 2 नहीं हो रहा, ये divided by 2 हो रहा है। मतलब अगर मुझे अपना desired vector चाहिए तो I need to divide this vector by 2. If this vector was smaller, if this was the factor of this vector, अगर ये multiple of 2 होता तो मैं अपने vector को 2 से multiply करके अपना desired vector निकाल लेता। If it was a multiple of 3, I would have multiplied my given direction vector with 3 to get the desired answer. यहाँ पे रिवर्स काम हो रहा है, जो इससे पहले वाले क्वेश्चन में हुआ था उसका रिवर्स। वहां आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा था बिकॉज द मैग्नीट्यूड गिवन वाज लार्जर देन द मैग्नीट्यूड दैट वी वर एबल टू कैलकुलेट इन दिस केस एंड इन दिस केस आल्सो। अब इस क्वेश्चन के अंदर the magnitude of minus 5i minus 12j is 13, which is 2 times the magnitude required. इसका मतलब क्या है? आप अपना वेक्टर कंसिडर करें, the original direction vector, which is minus 5i and minus 12j, and you multiply your vector with half, basically saying it dividing the vector by 2. So it's minus 5 upon 2i minus 12 upon 2j.
that makes it minus 2.5i and then minus 6j. This is the velocity vector of A, written as किलोमीटर पर आवर. मैंने आपको पहली रिकॉर्डिंग में ये बात बताई थी कि हम वही यूनिट्स फॉलो करते हैं जो हमें गिवन होते हैं. अगर वो किलोमीटर्स लिखते हैं हम किलोमीटर्स लिखते हैं, अगर वेलोसिटी की बात होती है तो किलोमीटर्स पर आवर लिखेंगे, अगर बात मीटर्स की होगी तो मीटर्स लिखेंगे. कोई यूनिट डिफाइन नहीं होगा तो आई विल जस्ट राइट इट एज यूनिट. So this is your answer for the velocity of A. ठीक है जी. Now the next part 2. A particle B now travels with velocity B. अब ये velocity B given है 12i minus 9j. This is the velocity that is provided to us. अच्छा सॉरी, जो वैल्यू इससे पहले है वो किलोमीटर्स पर आवर में नहीं है, दैट इज इन मीटर पर सेकंड, बट नॉनदलेस स्पीड का वेलोसिटी का यूनिट ही है. अब ये हमारे पास एक और वेक्टर आ रहा है व्हिच इज रिटन एज मीटर पर सेकंड. उन्होंने कहा हुआ है कि अ पार्टिकल बी ट्रैवल्स विद अ वेलोसिटी बी 12i minus 9j, फाइंड द स्पीड इन मीटर पर सेकंड ऑफ बी. अब यहाँ आपको क्या करना है, यहाँ आपको वो कॉन्सेप्ट फॉलो करना है जो मैंने इससे पहले वाली रिकॉर्डिंग बताया था, दैट इज दिस इज एन आई एंड जे वेक्टर and we need to split it as direction and magnitude. Direction की उनकी रिक्वायरमेंट नहीं है, उनकी रिक्वायरमेंट है मैग्नीट्यूड की. दे आर टॉकिंग अबाउट स्पीड. जब वो स्पीड की बात कर रहे हैं दे आर रेफरिंग टू द मैग्नीट्यूड. वो मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं. वैसे भी एक वेक्टर में दोनों पार्ट्स होते हैं. दिस कंटेन्स द मैग्नीट्यूड and this contains the direction also. ये मैंने explain किया है previous recording के अंदर, आप चाहें तो उसमें देख लीजिएगा. मैं इसमें इसलिए explain नहीं कर रहा because some students just want to solve questions, तो उनके लिए फिर ये easy हो जाएगा. So 12i minus 9j. अब आपने क्या करना है, magnitude calculate करने का एक ही तरीका हमें आता है and that is the Pythagoras theorem. So the answer in this case is which is equals to 15, and as we discussed, आप जो फॉर्मेटिंग में सॉल्व कर रहे हैं वैसे ही आंसर देंगे. यूनिट के अंदर आपने मीटर पर सेकंड का मैग्नीट्यूड निकाला है तो आंसर भी मीटर पर सेकंड में आएगा. सो दिस इज द मैग्नीट्यूड फॉर द स्पीड ऑफ बी कन्वर्टेड फ्रॉम एन आई एन जे वेक्टर. बार बार मैं इस बात पे एम्फसाइज कर रहा हूँ, प्लीज को याद रखिएगा कि आई जे वेक्टर कंटेन्स द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन. उसमें दोनों इंक्लूडेड होते हैं. कभी कभार वो आपको आई और जे वेक्टर प्रोवाइड कर देते हैं एंड दे आस्क यू टू एक्सट्रैक्ट द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन. हो सकता है डायरेक्शन नहीं पूछे, जैसे यहाँ पर उन्होंने डायरेक्शन नहीं पूछी, यहाँ मैग्नीट्यूड पूछा है तो आपने वो पार्ट कैलकुलेट कर दिया. एक्सट्रैक्शन पे डिपेंड करता है. अगर एंगल पूछते तो मैं इसका ट्राइंगल बना के इसका एंगल भी निकाल देता, बट अभी जरूरत नहीं है. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट. पार्ट 1 हो गया, पार्ट 2 सॉल्व हो गया. नाउ this is a connected question next part mein. It says particle A starts moving from the point with position vector 20i minus 7j. So your particle standing at this position 20i minus 7j. At the same time, particle B starts moving from the point with position vector minus 67i plus 11j. मतलब particle B start कर रहा है from this vector. Find RA, the position vector of A after t seconds, and RB, the position vector of B after t seconds. ये पार्ट आप लोग एक दफा सही से देख लीजिएगा. See, for these type of questions where they provide us with velocity and the old position, जहां वो आपसे कहें कि वेक्टर एक पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है, एक ये ऑब्जेक्ट है या पार्टिकल, इट स्टार्ट्स फ्रॉम अ पोजीशन एंड इट ट्रैवल्स फॉर अ सर्टेन टाइम एंड इट रीचेस अ स्पेसिफिक पोजीशन. उसके लिए हमारे पास एक इक्वेशन होती है. ना हो सकता है आपने डिफरेंट ऑर्डर में ये इक्वेशन करी हो, मैं इसको ऐसे याद रखता हूँ.
new position is equal to the old position plus t multiplied by the velocity. This is how I remember this equation. आप अपने तरीके से याद रख सकते हैं. New position of the given particle is equal to the old position plus t multiplied by the velocity. Now let's talk about A. A की old position क्या है जो मैंने red line से highlight करी हुई है. This is the old position of particle A. ये पार्टिकल ए की ओल्ड पोजीशन हो गई 20i minus 7j प्लस t मल्टीप्लाइड बाय द वेलोसिटी. किस वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है पार्टिकल ए? पार्टिकल ए की वेलोसिटी हमने निकाली थी पहले, -2.5i minus 6j. This was the velocity of particle A. -2.5i minus 6j. -2.5i minus 6j. Combining these values, I get the answer as 20. अगर मैं इसको एक वेक्टर फॉर्मेशन में लिख दूं तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा मैट्रिक्स के अंदर. You multiply the t's together. अब इस t का काम क्या है एग्जैक्टली? t का काम है टाइम. टाइम का मतलब ये, अगर मैं आपसे कहूं दैट particle A started traveling at 12 noon. दिन में 12 बजे इस पार्टिकल ने ट्रैवल करना शुरू किया. Where would the particle be or define the new position of the particle at 4 p.m. 4 p.m. का मतलब 4 घंटे. खैर ये क्वेश्चन तो सेकंड्स का है, बट हम चले आवर्स की बात कर लेते हैं. मैं आपसे कहता हूं कि द पार्टिकल स्टार्टेड मूविंग एट 12 p.m. at noon time. What will be the position of the particle at 4 p.m. 4 p.m. का मतलब 4 घंटे हो गए, तो आप उस केस में t की जगह पे 4 रखेंगे तो आपको पार्टिकल की न्यू पोजीशन मिल जाएगी. एज सिंपल एज दैट. ये काम होता है t का. नाउ दिस इज व्हाट वी कॉल ए स्टैंडर्ड इक्वेशन, बिकॉज उन्होंने हमें t बताया नहीं है. यहाँ पे उन्होंने कहा है फाइंड आर ए द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए आफ्टर टी सेकेंड. वो आपको टाइम नहीं बता रहे, वो आपसे सिर्फ ये कह रहे हैं कि आप पोजीशन निकाल के दिखा दीजिए. आपने पोजीशन निकाल के दिखा दी. अच्छा, इसी तरह से आप पोजीशन निकाल के दिखा दीजिए जल्दी से बी के लिए. बी के लिए क्या पोजीशन होगी? दी ओल्ड पोजीशन फॉर बी इज -67 and 11 प्लस अगेन टी मल्टीप्लाइड बाय द वेलोसिटी. इसकी वेलोसिटी क्या थी बी की? बी की वेलोसिटी उन्होंने हमें पहले क्वेश्चन में प्रोवाइड करी थी 12i minus 9j. दिस इज द वेलोसिटी ऑफ बी. So the equation for B will be -67 plus 12t 11 minus 9t. This is the new position for B. अब हमें टाइम नहीं पता होता तो निकाल लेते आंसर. उन्होंने हमें टाइम बताया ही नहीं है. उन्होंने कहा टी के फॉर्मेट में आंसर बता दीजिए. आपने टी के फॉर्मेट में आंसर बता दिया. इसको लेबल सही से कर दीजिएगा. इफ दे हैव ऑलरेडी मेंशन कि इसको आर ए और आर बी लिख के दें तो आप मेंशन कर दीजिए, कोई मसला नहीं है. नाउ द लास्ट पार्ट. Find the time when the particles collide and the position vector of the point of collision. अब ये important point होता है. ये important point इसलिए होता है because when two particles collide, whenever two particles collide, they have to be at the same point. तभी तो collision होगी. आप भाग रहे हैं कहीं पे and someone else is also running, तो अगर आप उस आदमी से जाके टकराएंगे collision होगी. तो वो क्यों होगी? क्योंकि आप दोनों एक ही point पर होंगे at the same time. तभी तो collision होगी. सो कोलिजन चेक करने का सबसे आसान तरीका क्या होता है? टू चेक कोलिजन you need to equate the two vectors that you have calculated. Collision होती है RA is equals to RB. आपने equate करना है 20 minus 2.5 T को with minus 70I minus 60.
-67 + 12t, so equating both these values. अच्छा, इक्वेट करने से क्या फायदा होगा? क्या डायरेक्टली कोलिजन हो जाएगी? बिल्कुल नहीं। कोलिजन होने के लिए इफ यू हैव टू इफ यू वांट टू प्रूव कोलिजन, ऑल्दो यहाँ प्रूव नहीं करना, उन्होंने ऑलरेडी कह दिया कि वो कोलाइड कर रहे हैं, सो दे हैव टू कोलाइड. बट इन एनी क्वेश्चन इफ दे आस्क यू वेदर द पार्टिकल्स आर कोलाइडिंग और नॉट, उसको चेक करने का तरीका ये होता है कि यू इक्वेट द टू इक्वेशन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, ऑन द राइट हैंड साइड. येलो पार्ट को येलो पार्ट से इक्वेट करेंगे, ग्रीन पार्ट को ग्रीन पार्ट से इक्वेट कर देंगे. Both of them should provide you with the same value of t. If the value of t is equal, only then they are colliding. Otherwise, they are not colliding. ये जरूरी है, दोनों वैल्यूज से t का आंसर सेम आना चाहिए. एक तो ये हमारे लिए एक एरर चेक भी हो जाता है कि t दोनों इक्वल आने चाहिए. सेकेंडली, ये उन क्वेश्चन में स्पेसिफिकली काम आता है जहां पे वो आपसे कहते हैं कि वेदर द पार्टिकल्स आर कोलाइडिंग और नॉट. अगर आपके पास दोनों टी इक्वल नहीं आते तो यू कैन सिंपली राइट कि सिंस द वैल्यूज ऑफ टी आर नॉट इक्वल, देयरफॉर द पार्टिकल्स आर नॉट कोलाइडिंग. और अगर पार्टिकल्स कोलाइड कर रहे होते हैं तो उनकी टी की वैल्यू इक्वल आ जाती है. लेट्स हम कैलकुलेट भी कर लेते हैं और चेक भी कर लेते हैं. ऑल्दो द चेक इज नॉट रिक्वायर्ड बिकॉज वो आपसे नहीं पूछ रहे कि कोलाइड कर रहे हैं या नहीं, बट फॉर आवर ओन अंडरस्टैंडिंग हम फिर भी चेक कर लेंगे. So from the yellow part, I get the answer as 87 divided by 14.5, and the answer of t is 6. The answer of t is 6. So that means कि उन्होंने कहा है ना find the time. उन्होंने टाइम कहीं मेंशन तो नहीं किया हुआ? नहीं, कहीं पे कोई क्लॉक टाइम मेंशन नहीं हुआ हुआ. So that means कि it takes 6 seconds to collide. They will collide after 6 seconds. अच्छा, एक्स्ट्रा पार्ट हम कर लेते हैं विच इज नॉट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, बट जैसे मैंने अभी आपसे कहा, मैं वो इसलिए करना चाह रहा हूँ ताकि आप लोग ये चेक कर लें कि सर ये कोलिजन चेक कैसे की जाती है अगर कहीं पे आ जाए तो. आप ग्रीन वाले पार्ट को इक्वेट करें और चेक कर लेते हैं कोलिजन हो रही है या नहीं, या हमने गलती तो नहीं करी कहीं. -70 -60 is equals to 11 -90. So it's -90. ओह सॉरी, मैं वही सोच रहा था कि ये मुझसे कहीं पे एक जगह मिस्टेक हो रही है. दिस वाज -7 ओनली. तो मैं वही सोच रहा था कि इतनी बड़ी वैल्यू कैसे बन रही है. जस्ट वन सेकेंड, लेट मी जस्ट करेक्ट इट. दिस इज जस्ट -7. So the answer for T is 6 seconds again. अब आप ये खुद से देख लीजिए कि दोनों आंसर्स इक्वल आ रहे हैं. ये वेरिफिकेशन इस क्वेश्चन में नहीं चाहिए, मैं बार बार ये बात मेंशन कर रहा हूँ. This is if they ask you कि whether the particles are colliding or not. अगर वो आपसे ये नहीं पूछते तो आपको इस वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं है, अभी ये रिक्वायर्ड नहीं है. Not required for now. But if they ask you are they colliding, तो फिर आप इसके थ्रू बताते हैं. अगर दोनों t सेम आएंगे, only then the particles are colliding, otherwise the particles are not colliding. तो एक तो ये वाला पार्ट हो गया. अब क्विकली एक लास्ट इसमें पार्ट देख लेते हैं.
एंड दैट इज वो कह रहे हैं कि टाइम तो आपने निकाल लिया एंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट ऑफ कोलिजन, जिस पॉइंट पे ये कोलाइड कर रहे हैं उसका पोजीशन वेक्टर बताइए। तो टाइम आ चुका है 6 आपके पास। आपने सिंपल सा काम ये करना है कि आप वो टाइम पुट कर दें इन एनी ऑफ द टू गिवन वेक्टर्स, या तो आर ए में पुट कर दीजिए या आर बी में पुट कर दीजिए, दोनों में से किसी भी एक में पुट कर दें एंड यू विल बी एबल टू गेट दैट पोजीशन वेक्टर। सो पोजीशन वेक्टर एट t इक्वल्स टू 6, वो निकालने के लिए विच एवर यू फाइंड सूटेबल आप उसमें t में ये वैल्यू पुट कर दीजिए। 20 minus 18, that's 18 बन रहा है ना ये, 6 into 2.5, नहीं 15 बन रहा है, 20 minus 15 which is equal to 5 and 36 plus 7। ये चेक कर लीजिएगा, देखें कैलकुलेटिवली मैंने सही किया है नहीं। बट दिस इज द फाइनल आंसर, 5 and minus 43। so this is the position vector। आपने पहले टाइम कैलकुलेट कर लिया, पहले आपने इस इक्वेशन को याद रखना है, न्यू पोजीशन is equals to the old position plus t multiplied by velocity। old position क्वेश्चन में गिवन थी ऑलरेडी, आपने ओल्ड पोजीशन पुट कर दी प्लस t मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी हमें पहले वाले पार्ट में कैलकुलेट कर चुके थे, वो भी पुट कर दिया। in the end the particles are colliding, you will equate the two expressions, even if they are not colliding you will equate the two expressions। अगर आपको ये प्रूव भी करना है कोलिजन हो रही है नहीं तो भी इक्वेट करेंगे। in that situation आपके पास t के आंसर्स इक्वल नहीं आएंगे। if they are colliding, if they're asking whether they're colliding or not, t का आंसर सेम आ गया तो कोलाइड कर रहे हैं। इस सिचुएशन में रिक्वायरमेंट नहीं थी, पहले से ही हमें पता चल गया, बट इट्स गुड आई गेस बिकॉज जैसे मैंने भी अपनी मिस्टेक ढूंढ ली, आप भी अपनी मिस्टेक ढूंढ सकते हैं इस तरह से। सो इट्स गुड कि आप दोनों साइड से चेक कर लें अगर, सो यू विल गेट अ गुड आइडिया कि भाई इफ दे आर कोलाइडिंग तो मेरा आंसर सेम क्यों नहीं आ रहा। once you have calculated the value for t then you can calculate the position vector of that point। कोई भी एक इक्वेशन लीजिए उसमें t पुट कर दीजिए एंड यू विल गेट द पोजीशन वेक्टर ऑफ दैट पॉइंट। ठीक है जी। So I hope this helps। I've tried to keep it as concise as possible and will try to upload more videos based on some other topics जो मुझे लग रहा है कि P2 में आ सकते हैं। ठीक है, thank you, take care, bye।